Can you hear me, Man and Nadiam? Okay, I guess she's not hearing me. Anyhow, so we are going to start our presentation, our lecture. But before that, I will request you all to have a quick recap of yesterday's lesson. Kindly open it on your mobile or laptop and quickly go through that for 2 to 3 minutes so that we can continue. Have a quick recap. Actually, आज make sure you keep a notebook and a pen with you. Okay. So, dear all, is my screen visible to all of you? Yes, it is clearly visible. That's good. Okay, so yesterday we discussed the very first point, getting ideas for creative writing. And today we are actually going to practice those ideas, and we discussed four types of things we can do to get or generate ideas. The first we discussed was that we can make a list. Then we discussed that we can also make a cluster diagram. And then we came to know that third thing is called independent investigation or research that can be done before starting a writing piece. And then we also came to know that there is a term that is called free writing. Free writing is something that you just brainstorm your mind and you keep on writing on the topic without thinking too much, and then you focus and you might get some idea from that free writing from your unconscious. So today we are going to actually practice ideas for imaginative writing in the assignment that we have taken among the classes. So making a list, how are we going to make a list? Somebody has to mute
क्या है और टास्क गोल्स क्या है, आपने करना क्या है। टास्क वर्क के साथ टास्क होल्डिंग के साथ उसमें राइट अ पीस फॉर लिमिटिंग वर्ड्स एंड द स्टीप लर्निंग कर्व. Very good. We are write about steep learning curve and what we are write a piece और write a piece में हम opening या हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने कुछ ना कुछ creative imaginative लिखना है steep learning curve. The most important word is seems to be learning और सबसे अहम हमें कौन सा वर्ड लगता है वो हमें important वो learning लगता है. So we'll begin with that. Start listening to everything that comes into our mind about learning. Any kind of learning. Let's all explore what comes out. Try it on your blank pages. So मैंने आपको कहा था कि you will have a pen and notebook with you. So start exploring your mind. ठीक है? Start listening to everything that comes into your mind about learning. Learning के बारे में जो कुछ आपके ज़हन में आता है, make a list. वो जो खाली पेज आपके सामने पड़ा है blank पेज, उस पेज को जरा पढ़िए आप. Listen to your conscious, listen to your show, listen to your head, and what you know, what comes in your mind. पॉइंट्स बनाते जाएं पेज पे. लर्निंग लिख के नीचे आपके ध्यान में क्या क्या जो आता है उसको नोट करते जाएं. You have 3 minutes to do that. Yes. तो ये steep learning का तो उर्दू में क्या बताना होगा? बेटा स्टीप का मतलब क्या होता है? स्टीप का मतलब पता है आपको? स्टीप सीधी चढ़ाई होती है और उस तरह की बात. exactly something that is difficult, something not linear, यानी बिल्कुल सीधा नहीं, something that is difficult, जिसमें hurdles, जिसमें चढ़ाई, जिसमें ascend करना पड़ता है आपको, descend नहीं ascend. और learning आपको पता है. और curve क्या होती है? Faisal, what does the word curve mean? Sorry? आपकी आवाज क्लियर नहीं है. Somebody else, what do you understand by the word curve? Abdul Wakil, what do you understand by the word curve? कर्व यानी मोड़ यानी चलते चलते कोई टर्न आ जाए. अच्छा. Abdul Wakil, what do you understand by the term curve? सर जो फैसल ने कहा वो भी है, लेकिन उसका दूसरा मतलब है खम खाना. What is kham actually? कर्व ऐसे लाइन को कहते हैं, ऐसे मोड़ को कहते हैं, या खम को जो सीधे चलते हुए अचानक मुड़ जाए ऊपर की तरफ. Exactly. जैसे वर zigzag वर. वेरी गुड. तो देखिए लर्निंग जो है, लर्निंग को उसने स्टीप कर्व कहा है. लर्निंग इज अ स्टीप कर्व. आप कोई भी चीज सीखने जा रहे हैं तो एक तो आपको असेंड करना पड़ेगा, आपको चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा, यानी इट्स अ स्टीप टास्क. वो बिल्कुल सीधा टास्क नहीं है. इट्स अ टफ टास्क. एंड ऑल्सो अलोंग विद इट्स बीइंग टफ, इट हैज ऐसे टर्न इट हैज इन इट, ऐसी कर्व्स इट हैज इन इट, ऐसे खम इट हैज इन इट कि जो अचानक आएंगे. ऑल ऑफ अ सडन आप whenever you will be learning something, all of a sudden you will get blank. आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि यार अब क्या करना है, समझ ही कुछ नहीं आएगी. And that is why it is called steep learning curve. Whenever you are learning something, it becomes a curve and that curve is steep. अगर आपका ये जो खम है, ये मोड़ है, ये बिल्कुल सीधे रोड पे हो तो शायद इतना मसला ना हो, लेकिन चढ़ाई में जब ये मोड़ आता है तो it becomes quite a difficult thing for a driver as well. So or even somebody who is walking, it becomes difficult because you have to adjust yourself accordingly.
अब यहाँ पे भी यही मसला है कि आप देखेंगे कि आप लिखते लिखते 3 पैराग्राफ लिखेंगे, उसके बाद आपको समझ नहीं आएगी कि अब मैं क्या लिखूं। आप गाड़ी ड्राइव करना सीख रहे हैं, अचानक आपने गाड़ी घर से निकाल भी ली, आप थोड़ा सा बाहर भी ले गए, और फिर अचानक आपने रोड पे देखा कि इतनी ज़्यादा कार जमा हो गई हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब आपने क्या करना है। आप से गियर भी नहीं लग रहा गाड़ी का, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, गाड़ी बंद हो गई है। आपको तो सिर्फ ये पता है कि अब ये स्टार्ट होके चलती कैसे है, बंद हो गई है तो उसको क्या करना है। सो दिस इज़ अ टफ जॉब। वेन एवर यू आर लर्निंग समथिंग, it's a tough job. That's why it is called steep learning curve. Okay, anyhow, getting back to the work. So you have 3 minutes, Beta. In 3 minutes, the most important word comes that in your head should be learning. तो लर्निंग को आप अपनी टॉप हेडिंग बना के एक पेज के ऊपर जस्ट जॉट डाउन द आइडियाज, एनीथिंग दैट कम्स इन योर माइंड, डोंट थिंक टू मच। बस आपके दिमाग में जो चीज़ आ रही है उसको लिखते जाएं, अपने खाली पेज को जरा भरें। 3 मिनट से आपके पास। सर किसके बारे में? बेटा मैंने शायद बड़े क्लियरली बताया, अगर आपने सुना हो, कि ये असाइनमेंट है, राइट अ पीस विद द टाइटल स्टीप लर्निंग कर्व। आपने सिर्फ ये देखा कि इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड कौन सा है, लर्निंग। तो लर्निंग को लेके आपने कुछ आइडियाज़ जनरेट करने हैं, आइडिया गेट करना है। तो आपके जहन में जो कुछ लर्निंग से मुतालिक आ रहा है उसको पॉइंट्स की सूरत में अपने पेज पे लिखिए। पॉइंट्स आपके 2 से 3 वर्ड से ज़्यादा, लाइन सेंटेंस नहीं लिखना, पॉइंट्स लिखने होते हैं। 2 से 3 वर्ड्स, जैसे मिसाल के तौर पे लर्निंग नॉट इजी एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है। स्टीप ये हो सकता है। यू हैव टू टेक इनिशिएटिव, तो आपको आप लिख सकते हैं फर्स्ट ट्राई, इनिशिएटिव एटसेट्रा। क्योंकि आपने फिक्शन लिखनी है, कहानी लिखनी है, ये इमेजिनेटिव राइटिंग के लिए है, तो आप कोई कैरेक्टर अपने जहन में मिला सकते हैं कि किस तरह से कैरेक्टर ए, कैरेक्टर बी, सी, डी वो कुछ करना चाहता है, लेकिन उसकी जो ये आप एक कहानी। तो लर्निंग से मुतालिक फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी आइडिया जो आपके जहन में आता है कैसे होती है उसको ज़रा लिखें।
ओके जी, स्टॉप राइटिंग। जो कुछ भी आपने लिखा है अब बस अब रुक जाइए। मोहम्मद बिलाल, कैन यू लिसन टू मी? बिलाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir, Bilal. जी बिलाल, क्या लिखा है आपने? Sir, education by seeing from experiences need hard working, face difficulties for knowledge important. वेरी गुड, वेरी गुड। यासिर बेटा, आपने क्या लिखा है? ईमान मरियम, आपने क्या लिखा है? जी फैसल, आपने क्या लिखा है? सर मैंने लिखा है लर्निंग मीन टू गेट समथिंग which enhance knowledge. Learning have many ways to get. I prefer learning through life incident because it is long life and a person can never forget the life lesson which he gained from incident. अच्छा अच्छा, एक तो फैसल आपने जब ये अपनी पॉइंट्स बनाने, तो पॉइंट्स बनाने, सेंटेंसेस नहीं लिखने, ठीक है? जैसे आप लिख सकते थे लर्निंग नॉलेज। पहला पॉइंट आपको हो सकता था कि लर्निंग लीड्स टू नॉलेज, ठीक है? फिर आप दूसरे पे लिख सकते थे लाइफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है? लॉन्ग लास्टिंग। तो ताकि आपका एक एक पॉइंट और बाद में आप उसको फिर सोचें कि अच्छा, मैंने जब ये बात की थी कि लाइफ या लर्निंग इज़ एजुकेशन या इट एनहांसेस एजुकेशन, तो वो किस तरह से उसको एंडोर्स करना है, और फिर आपने किस तरह से सब्सटेंशिएट करना है इस बात को कि इट्स लॉन्ग लास्टिंग। लर्निंग इज समथिंग दैट इज, वो कहते हैं कि नोबडी कैन टेक योर नॉलेज, योर लर्निंग जो आपने की हुई है। यू कैन बी अ पुअर मैन बट यू कैन ऑलवेज बी रिच विद योर लर्निंग। दिस इज समथिंग दैट have it, you are always rich. So that these are the good points that you have maintained there. Abdul Wakil, what have you written there? Sir, I am going to read. Who is going to read? Yaqub Ahmad Khan. Yes, my dear Yaqub, please. Learning of anything is the blessing of Allah for us because it is the only thing due to which we are the base of all the living beings. Learning make us a person and also it make our personality. Learning is basically the great thing or great bounty of Allah for us. बस सर जी यहाँ तक लिखे। बेटा, मैं यही बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ पॉइंट्स बनाने थे, आइडियाज जनरेट करने थे, पैराग्राफ की सूरत में इसको नहीं लिखना था। अभी आपके पास आइडिया क्या आया है? यानी फैसल का अब मुझे समझ आया कि वो कहते हैं कि लर्निंग, एक बात उनको लगी कि ये इन्हांस नॉलेज है और लॉन्ग लास्टिंग है, हमेशा रहने वाली है। आपने जो पैराग्राफ याकूब लिखा है, इसमें पॉइंट्स क्या है, ऐसे आइडियाज़ हैं जिन पे आप काम करके एक स्टोरी बना सकते हैं? इसमें पॉइंट ये है कि अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, उसके बारे में फिर एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा जा सकता है। अच्छा, और यही एक ऐसी चीज है इल्म के जिसकी वजह से हमें फजीलत मिली है। तो इसके इल्म में, बहुत बड़ी है। लर्निंग में और लर्निंग सीखने के प्रोसेस का नाम है। हम असल में हर चीज़ को ना बहुत ही ऊपर ऊपर से ले लेते हैं। ये इल्म नहीं है। इल्म के लिए आपका लफ्ज़ और है। लर्निंग सीखने के अमल को कहते हैं, ठीक है? कोई भी काम आप सीख रहे हैं तो वो प्रोसेस है, उसको हम लर्निंग कहते हैं। ये इल्म का इससे ताल्लुक नहीं। जी सर मैं बता सकता हूँ क्या? जी जी, कौन बताना चाहता है? सर मैं वराब। जी वराब, प्लीज। Learning is the first need which starts from the mother's cradle. Learning is one of the action which goes on till the day we have to die. Learning can be in any form
saw, raw, or abstract. Learning can be gained from anywhere. Learning is revolving with our breaths, which we take. Actually, learning is like a dust for which we have to go down in a dusty sky to put it into your cart, like dust drives to your sandals. Hmm. इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। सो ये सब कुछ जो आप कह रहे हैं, जो आपने खूबसूरत सी सिमली भी यूज़ की, इज इट टेकन फ्रॉम समवेयर या इज इट योर ओरिजिनल थिंग दैट केम इन योर सर हेड? सर अभी अभी लिखा है बैठे बैठे, ना कुछ देखा ना कुछ खोला। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बात है। यू हैव द एबिलिटी, यू हैव द नैक ऑफ राइटिंग गुड प्रोज। आई होप आप अच्छी स्टोरीज और ऐसे लिखेंगे। लेकिन मैं बात जो कर रहा हूँ आपको शायद समझ नहीं आ रही कि ये मेकिंग अ लिस्ट है। हम जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और आप पैराग्राफ सुनाए जा रहे हैं सारे के सारे, इसको लिस्ट में बनाना है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने जो लिस्ट बनाई है स्टीप लर्निंग, मेरे ऊपर जो जहन में आया उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। जी, एनीबडी एल्स अगर कोई शेयर करना चाहता है अपनी जो लिस्ट है, तो हम उसको करते हैं। वकील, आपने लिस्ट बनाई है? आपने हाथ खड़ा किया हुआ है जी। यस सर। सर यहाँ पे कुछ लफ्ज़ जी जो बेटा। मेरे जहन में आए सर, सबसे पहले तो टीचर, स्टूडेंट, फिर इंफॉर्मेशन, क्या बात। सोसाइटी, डूइंग, स्कूल, कॉलेजेस, सीकिंग, रिफ्लेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, इनफॉर्मल, फॉर्मल, ये सारे वर्ड्स आए लर्निंग से माशाल्लाह। ताल्लुक़ That, रखते हैं। that's what I was actually looking for. ये है actually the things that are related to learning. Very good, very good job वकील। इसमें जो मज़ीद आप इम्प्रूव करेंगे ना, रिफाइन करेंगे कि learning is not only that takes place in school or college. It can be, जैसे वराब ने कहा कि you can learn from anyone and from anywhere. सो इट्स और फिर इसके प्रोसेस के ऊपर बात होगी, तो एटलीस्ट यू गॉट समथिंग ऑन द पेज। आप देखें, खाली पेज था, अब आपने ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख लिया। ये बहुत अहम चीज़ है कि लर्निंग किस तरह आपको ट्रांसफॉर्म करती है, ठीक है। इंक्वायरी आपने लिख दिया, या इंफॉर्मेशन किस तरह लर्निंग जो है वो उसका एक पर्पज़ इंफॉर्मेशन पास करना है, वो किस तरह होगा। सो अ वेरी इम्प्रेसिव जॉब वकील। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अगली स्लाइड में कि जो लिस्ट या मेकिंग अ लिस्ट जो मैंने बनाई इस आइडिया को ज़हन में रखते हुए, और ये ज़हन में रखते हुए कि हमने आगे चल के एक स्टोरी बनानी है इसके ऊपर, शॉर्ट नैरेटिव। तो मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ, हम उससे मज़ीद आगे बात करेंगे। जी, आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी हाँ जी हाँ। अच्छा, मैंने क्योंकि ये एक पेज पे नोट पे या रजिस्टर पे, तो एक पेज पे लर्निंग आपने टॉप पे लिखा और जितना कुछ आपके जहन में आया उसको आपने नीचे, लेकिन मैंने ये 2 पेजेस पे किया है इसको, बल्कि 3 पेजेस पे किया है, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड पे अगर मैं इसको एक ही में करता तो आप लोगों को विजिबल ना होता, फॉन्ट छोटा हो जाता। तो मैंने इसको विजिबल रखने के लिए, तो आप इसको यूं ही समझें कि एक पेज है बेसिकली, जिसमें अब मैंने क्या किया कि ये लर्निंग आपको टॉप पे लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल मैं फ्रेश जो सोचा कि क्या है, लर्निंग से लर्निंग टू रीड माइंड में आया, लर्निंग टू टेल द टाइम माइंड में आया, लर्निंग टू स्विम जो है वो आया उसमें। आपने खुद देखा होगा कि टाइम बताने का जो हुनर है, आपने बाकायदा एक ख़ास एज में इसको सीखा होगा। अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता कि अढ़ाई बजने से क्या मुराद है, 1:30 बजने से क्या मुराद है, 2:45 बजने से क्या मुराद है, 3:30 बजने से क्या मुराद है। सो लर्निंग टू टेल द टाइम, एक बच्चा जो है जब बड़ा हो रहा होता है उसको, फिर आप इंग्लिश में उसको अगर आप बताना चाहें, इट्स 4:15, इट्स 4:15, इट्स 1/2 क्वार्टर।
तो ये चीज़ें किस तरह से आती हैं, ये जस्ट एक मेरे जहन में आइडिया आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि ये मैं लिख रहा हूँ, ये जो मैंने 3 आपको लगा होगा ये स्टार्स डाले हैं, स्टारिक्स जो हैं, ये बेसिकली इंडिकेट करते हैं डेड एंड को, यानी जब आप इनिशिएट करते हैं और फिर आपको समझ नहीं आती अब आगे क्या लिखना है, ठीक है। मैंने बाकायदा इसको इस तरह से यहाँ पे लिखा है। अच्छा, पहले ये सोचा कि लर्निंग में लर्निंग टू रीड, लर्निंग टू टेल द टाइम, लर्निंग टू स्विम। फिर मैंने सोचा कि चूंकि मैंने तो स्टोरी बनानी है तो मैं किसी को एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूं, उसकी लर्निंग के ऊपर क्रिएट करूं जिससे आगे चल के उसके ऊपर काम हो सके, कोई सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग टू रीड पे भी हो सकता था कि व्हेन आई कैन टूक अ कैरेक्टर व्हेन एफ फॉर एग्जाम्पल फॉर फैसल, एफ वांटेड टू लर्न ड्राइविंग, ठीक है, ही वेंट टू अ ड्राइविंग स्कूल, मैं ड्राइविंग स्कूल लिख सकता था आगे। फिर ड्राइविंग स्कूल यानी एफ के बाद नीचे हो सकता था ड्राइविंग स्कूल, फिर नीचे हो सकता था ड्राइविंग मास्टर वाज काइंड, चौथा हो सकता था ही वेंट आउट, हैड एन एक्सीडेंट, जो भी सारा मामला, तो एक उसके ऊपर हम बाद में जाके एक स्टोरी क्रिएट कर सकते थे। अच्छा, फिर चूंकि मेरे जहन में लर्निंग टू स्विम आया, लर्निंग टू टेल द टाइम, या इस, तो मैंने सोचा अच्छा लर्निंग टू स्विम के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिखा था ओलंपिक पूल, ठीक है, पूल, स्विमिंग पूल जो होता है। अब चूंकि मैंने स्टोरी लिखनी है उसमें ज़रा वर्ड्स और ये चीज़ें भी सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ओलंपिक पूल ताकि उसको ज़रा यूनिवर्सल बनाया जा सके, अपीलिंग बनाया जा सके रीडर के लिए। फिर उसमें एडजेक्टिव्स का हम ऐड करते हैं, ब्लू वाटर, ठीक है, कि पूल है तो अब पूल में वाटर होगा ज़ाहिर है, तो हम उसको जब स्टोरी में लिखेंगे तो हम द ओलंपिक पूल वाज लशिंग विद ब्लू वाटर, इस तरह की बात हो सकती है। फिर उसकी वो किस तरह से पूल्स में उसकी जो शक्ल है, उसकी जो हेयत है, वो नज़र कैसे आता है, लिटिल वाइट हेक्सागोनल टाइल्स एटसेट्रा, ठीक है। अब वो ये मैंने उसको कहानी में कि डैड होल्डिंग मी अंडर द चेस्ट एंड डोंट लेट गो फनी echoing noises, फीलिंग ऑफ वाटर अप नोज, ये एक इमेज है, ये आइडियाज़ हैं जो आपके जहन में आए कि आपके अब्बा जान ने आपको उठाया हुआ है, आप स्विमिंग पूल में हैं और फिर वो आपको समझा रहे हैं कि आपने किस तरह स्विमिंग करनी है, ये सारे कुछ आपके इधर उधर से शोर भी आ रहा है, फीलिंग ऑफ वाटर अप नोज। तो ये आइडियाज़ हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं इस आइडिया को लेके, ये एक चीज़ आई है मेरे जहन में, मैंने उसको लिख लिया है, बाद में मैं इस पे सोचूंगा कि क्या इस पे काम किया जा सकता है, क्या इसको स्टोरी बनाया जा सकता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे उसको। क्योंकि ये मैंने कहा ये पहला जो हमने स्टेप 1 है ना, अभी हम स्टेप 1 पे हैं, गेटिंग और जनरेटिंग आइडियाज़। जब हमारे पास 4 5 7 आइडियाज़ आ जाएंगे, उनमें से फिर हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे, वो जो हमने 6 स्टेप पढ़े थे चूजिंग, उनमें से हम चूज करेंगे कि अच्छा इनमें से कौन सा बेहतर आइडिया कौन सा है, इनमें से वो कौन सी बात है जिसके बारे में मुझे पता सही है और मैं लिख सकता हूँ उसके बारे में। तो ये अभी हम सिर्फ और सिर्फ जिसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कह रहे हैं, एक्सप्लोरिंग कह रहे हैं, ये वो है। अच्छा, फिर ये मैं आगे चला, मेरे जहन में था कि अच्छा ज़ुबान का कोई भी ज़ुबान है, लर्निंग इंग्लिश हो सकता है, लर्निंग उर्दू, लर्निंग फ्रेंच जो है उसमें क्या होता है, लर्निंग लिस्ट ऑफ वर्ड्स बाय हार्ट, जब आप ये कोशिश करते हैं, एम्बैरेसिंग ट्राइंग टू से द वर्ड्स आउट लाउड। अब मैंने खुद चाइनीज़ का कोर्स किया, मैंने खुद फ्रेंच पहले भी सीखने की कोशिश की, तो जब आप कोई भी नई ज़ुबान सीखते हैं तो आपको बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है, आप जब उसके वर्ड्स को प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं और लाउडली क्लास के सामने प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं, तो आप कुछ ना कुछ प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। जैसे हमारे बच्चे इंग्लिश को क्लास में प्रोनाउंस करते हुए वो ठीक ठाक जो वर्ड्स हैं, अभी किसी ने बोलते हुए ब्रीद कहा था, वो लफ्ज़ बेसिकली ब्रेथ है, कि BREATH है, जो ब्रीद नहीं है, ब्रेथ है, ठीक है। वो बोलना ब्रेथ चाहिए था लेकिन किसी ने उसको पता नहीं ब्रीद की क्या बोला था। तो ये इस तरह से जब आप बोलते हैं आपको कई दफ़ा एम्बैरेसमेंट भी होती है कि आप लर्निंग कोई भी नई ज़ुबान सीख रहे हैं, उसमें फिर आप एक सिचुएशन, आपको लगता है कि अदर किड्स सीम टू बी गेटिंग इट ओके, ऐसे लगता है कि बाकी बच्चों का तो उनको आ रही है, वो समझ रहे हैं। कोई भी नई ज़ुबान जब आप सीखने जाएंगे ये एक्सपीरियंस आपको होगा, और अपने आप का लगता है कि मैं ही डम हूँ, मी द ओनली डमी, कि मुझे ही समझ नहीं आ रही, बाकी सब सीख रहे हैं। ये दीज आर जस्ट आइडियाज़, और यही आइडियाज़ आप किसी दूसरी ज़ुबान के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके जहन में आता है
कि अच्छा यार मैं ये कोशिश करता हूँ, उसमें से फिर एम्बैरेसमेंट होती है, बाकी बच्चे जो है वो लगता है अच्छे जा रहे हैं, मैं मुझ पे हंसा जा रहा है, मुझे नहीं आ रही, किसी तरह से कमजोरी हो रही है मुझे इस तरह से। सो दिस इज़ अनदर पॉइंट जो मैंने उस पेज पे डाउन कर दिया। ठीक है जी। अब जब हमने ये कर लिया, तो अभी भी आप देखेंगे इस पेज पे कोई भी ख़ास बात नहीं है। 3-4 मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मेरे ज़हन में आई हैं। उसमें लर्निंग टू स्विम है, लर्निंग टू प्ले टेनिस। मैं एक सोचा था मैंने कि अच्छा कि अगर मैंने टेनिस के ऊपर लिखना है, लर्निंग टू प्ले टेनिस कि कैसे सीखनी है, उसके ऊपर मैंने देखा कि से जो है वो प्लेयर ए प्लेयर बी के साथ, और आप उसको इमेजिन करते हैं, आप उसके आइडियाज़ जॉट डाउन करते हैं, यू आर वाचिंग देम, यू आर विटनेसिंग देम। ठीक है, तो ये सारे आइडियाज़ हैं। लेकिन अभी भी ये जो मैंने लिखा है यहाँ के, अभी आपको यही लगेगा कि ये क्या है, देयर इज़ नो नथिंग ब्रिलियंट हियर, कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं है। बट कुछ एग्जांपल्स तो मेरे पास आ गई हैं ना लर्निंग की। इससे पहले मेरे पास ब्लैंक पेज था। अब मैंने उसमें से लर्निंग टू स्विम ले लूँ, लर्निंग टेनिस ले लूँ, लर्निंग फ्रेंच ले लूँ। अब इनको मैंने स्टीप लर्निंग कर्व के साथ लेके चलना है आगे। मैंने ये ले लिया कि अच्छा ये लर्निंग है और इसमें ये चीज़ें आ सकती हैं। दैट मीन्स आई हैव गॉट 3 आइडियाज़ अबाउट द असाइनमेंट नाउ, वेयर 2 मिनट्स अगो आई हैड अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर। यानी आप सब के पास अब कुछ ना कुछ आपके जो ब्लैंक पेपर्स थे उस पे आ चुका है। जबकि स्टीप लर्निंग कर्व जब आपने सुना था, पढ़ा था, आपके ज़हन में कुछ भी नहीं था। तो यही प्रोग्रेस है लर्निंग की। एकदम से आपके पास कोई सुपर नेचुरल बहुत ही शानदार चीज़ नहीं बन जाती। आपका वो खाली पेज अब खाली नहीं रहा, इसका मतलब है आपने कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर लिया, आपका दिमाग किसी न किसी तरह से चलना शुरू हो गया। आप उसको आहिस्ता-आहिस्ता आगे रिफ़ाइन करते जाएँगे, बेहतर करते जाएँगे। अच्छा, ये एक इमेज है, इसको ये बेसिकली क्लस्टर डायग्राम, उसी चीज़ को लर्निंग को लेके हमने पहले लिस्ट बनाई। अब आप अगर उसी लिस्ट को आप करना चाहते हैं अपनी क्लस्टर डायग्राम में, तो आप क्लस्टर डायग्राम कैसे बनाते हैं? आप क्लस्टर डायग्राम, ये एक छोटी सी आपके सामने एग्जांपल है उसकी, कि आप इस तरह से लर्निंग को आप मिडिल में लिखें, जो आपका टास्क वर्ड है, जो आपका इम्पोर्टेंट वर्ड है, और फिर आप उससे रिलेटेड छोटे-छोटे फ़ील्ड्स बनाते जाएँ, छोटे-छोटे खाने बनाते जाएँ, छोटी-छोटी चीज़ें जो उस एक-एक, यानी आपका आइडिया है, जैसे आपने लिस्ट में किया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लर्निंग टू स्विम किया, तो लर्निंग टू स्विम में मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं फ़ौरन से क्या लिखूँ इसके, तो अभी वो खाली उसी तरह पड़ा है। जबकि जब मैंने लर्निंग टू फ्रेंच लिखा, तो मेरे ज़हन में मैंने कहा एक कैरेक्टर ले लूँ, मैंने कहा कि चलें अली कह देता हूँ। तो मैंने सोचा अली ट्राइंग टू लुक फ्रेंच, यानी उसको फ्रेंच दिखाई देने का बड़ा शौक है, फ्रेंच वो लगना चाहता है। और वो कैसे लगेगा, वो ज़ाहिर है फ्रेंच ज़ुबान सीख के लग सकता है। अच्छा, उसके वो क्या करता है कि वो फ्रेंच की राइम्स जो हैं, नज़्में हैं फ्रेंच ज़ुबान में, वो गाता है। ये चीज़ें मेरे ज़हन में आ रही थी। मतलब मैं बिल्कुल आपको रैंडम बता रहा हूँ कि किस तरह से कोई भी चीज़ आपके ज़हन में कंक्रीट नहीं आती, आप उसको लिखते जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो पैनिक्ड हो जाता है कि यार नहीं, ये तो मुझे नहीं आती। पैनिक, परेशान हो जाना कि मुझसे तो नहीं सीखी जा रही, ठीक है, एटसेट्रा। और फिर आप उसके ऊपर मज़ीद लिख सकते हैं। यही आ रहा था, इससे ज़्यादा समझ नहीं आया कि उस वक़्त क्या लिखना है। लर्निंग टू ड्राइव, दूसरी तरफ जो पॉइंट मेरे ज़हन में चल रहा था, एक और आइडिया कि लर्निंग टू ड्राइव में स्टक इन अ लेन फुल ऑफ कार्स, फिर उसमें मैं झटके लगा रहा हूँ गाड़ी को, जर्की स्टार्ट, ये जो कैरेक्टर है वो इस तरह की सिचुएशन में है। फिर ड्राइविंग टेस्ट देने गया, फेल हुआ, पास हुआ, वो कहानी आप लिख सकते हैं। फिर कभी वो किसी कुत्ते के ऊपर चढ़ गया, रेन ओवर डॉग, एक्सीडेंट हो गया, रेन ओवर अ कैट, एक्सेट्रा। तो ये आपके सामने चीज़ें जो हैं वो ये इसको इस तरह से आप कर सकते हैं क्लस्टर डायग्राम की सूरत में। ठीक है, या आप लर्निंग टू रीड करना चाहते हैं, तो टीचर्स, उसमें यूजुअली क्या होता है, जब आप कोई भी नया जो ज़ुबान है उसकी प्रोनंसिएशन सीखना चाहते हैं, तो टीचर क्या करता है, ही स्पेल्स द वर्ड फॉर यू। आप या अली जो है, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा, वो रिपीट करता है, फिर गलत प्रोनंसिएशन होती है, फिर रिपीट करता है। सो ड्रिल से या प्रैक्टिस से सीखता है। तो ये एक और सिर्फ शक्ल है आपको दिखाने का मकसद कि ये क्लस्टर डायग्राम जो है, मेकिंग लिस्ट, ये भी लिस्ट ही है, लेकिन ये क्लस्टर्स की सूरत में है। और ये इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट
बॉक्स टू बॉक्स आप अब किसी बात में आप इनमें से कोई एक आइडिया चूज करेंगे और आप उस आइडिया के ऊपर सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, उस आइडिया के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। तो अब आप लोग ये करें कि इस तरह की एक क्लस्टर डायग्राम जो है, आप अपनी क्लस्टर डायग्राम बनाएं। एक लर्निंग को इसी तरह आप सेंटर में लिखिए और क्लस्टर डायग्राम बनाएं। 3 आइडियाज़ हैं, 4 आइडियाज़ हैं, जो मेन आइडियाज़ आपके लर्निंग के रिलेटेड आ रहे हैं उनको इसी तरह से आप एरो दीजिए और फिर उनको डिसेंट्रलाइज कीजिए। हर आइडिया का फिर सब आइडिया बनाइए। जो मेन आइडिया है तो वो लिखिए, फिर उसके जो सब पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स के बाद वो लिखिए। तो आपके पास 3 मिनट्स हैं, आप 3 मिनट्स में एक क्लस्टर डायग्राम बनाइए प्लीज। और इस दफ़ा मैं कुछ लोगों को कहूँगा कि वो यहाँ चैट में उसकी इमेजेस भी शेयर करें। तुफैल खान कह रहे हैं कि उनको आवाज़ नहीं आ रही। हेलो सर, मैं कैसे इस क्लस्टर डायग्राम को बनाऊं? जी सर ये डायग्राम ये जो भी है इसको मैं किस तरह करूं? आप ज़ाहिर है उसको मेकिंग अ लिस्ट वाला जो काम है, आप यूजुअली लिस्ट बना लेते हैं, लिख लेते हैं खुद, कैसे करते हैं काम? सर मैं तो ब्रेल में लिखता हूँ, आपको शायद आइडिया हो। तो ब्रेल में आप लिस्ट बना लें। ब्रेल में क्लस्टर डायग्राम नहीं बन सकती? सर इसमें इमेज का तो कोई काम नहीं है ना? नहीं, तो इमेज का काम नहीं है। आपने यानी एक बॉक्स बनाना है जिसमें आप समझ लें, आपने छोटा सा बॉक्स बना के लर्निंग बीच में लिखा और फिर उससे आपने छोटे छोटे बच्चे उस आइडिया के चारों तरफ निकाल दिए या जितनी तरफ निकल गए, और फिर उन उन जो आइडियाज़ आपने निकाले हैं उनके सब आइडियाज़ छोटे बॉक्सेस में एरोस की सूरत में उसके नीचे या इर्द गिर्द आना शुरू हो जाते हैं, जो कुछ आपके जहन में उस वक्त आ रहा हो। जी सर। सर हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मैं बॉक्स नया तो मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। जी कौन कौन बात कर रहे हैं? सर मैं मोहम्मद फैजान बात कर रहा हूँ और जी मैंने फैजान, लर्निंग का बॉक्स नया। जी मैं आपको
अपना वो लर्निंग का बॉक्स बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या जो है ना लिखा है। बनाई है ये बनाई। सर आपकी आवाज जो है ना वो कट कट के आ रही है। मैंने कहा कि आपने क्लस्टर डायग्राम बनाई है। ये डायग्राम बनाई है सर। आप बेटा काइंडली चैट में जाके उसकी पिक्चर लेके शेयर करें। अच्छा सर। हाँ जी, आप उसकी पिक्चर लें अपने फोन से जो आपने लिखा है, और शो कॉन्वर्सेशन जहाँ पे आ रहा है आपका उसमें जाएंगे, और उसमें जाने के बाद आपने वहां पे जाके इसको पिक्चर को अपलोड करना है। ठीक है, इस तरह ठीक है सर, ठीक है सर। पिक्चर शेयर करें जरा, मैं देखता हूँ। फैसल हैज शेयर्ड इस पिक्चर। तो आप सब के सामने फैसल की जो पिक्चर है वो आ गई है। उसको मैंने अपनी स्क्रीन पे शेयर किया है, आप लोग देख सकते हैं इसको भी। फैसल ने किस तरह से क्लस्टर डायग्राम बनाई है। लर्निंग इज देयर इन द मिडल, एंड फर्स्ट स्टेप ऑफ चाइल्ड टू, वेरी गुड, ये इन्होंने लिखा। राइटिंग ऐसे, लर्निंग इज फन, टू गेट टू नो मैनी फॉर्म्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो जो चीज़ इनके जहन में आ रही थी, इन्होंने उसको फ्रेम करना शुरू कर दिया है। इसको फैसल मज़ीद बेहतर ऐसे बनाया जा सकता है कि आप एक जो आइडिया है, जैसे फर्स्ट स्टेप ऑफ चाइल्ड है, तो इसके नीचे जो कुछ मज़ीद आपके जहन में आ रहा था, यहाँ जब मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, आपने यहाँ सर्कल कर लेना था इसको। फिर इसके नीचे उसी से रिलेटेड 3 4 5 पॉइंट आप मज़ीद लिख सकते थे। इट हैज़ मैनी फॉर्म्स, जैसे आपने लिखा, तो मैनी फॉर्म्स के साथ यहाँ ऊपर करके मज़ीद इसके रिलेटेड पॉइंट्स लिखे जा सकते थे। सो इट्स वेरी गुड। इसी तरह से हमने एक्सप्लोर करना है, इसी तरह से। और ये समझिए कि जब आपने टू नो कहा है, तो टू नो से क्या मुराद है, मज़ीद इसको एक्सटेंड करने वाली बातें आप इसके साथ साथ मज़ीद यहाँ पे बॉक्सेस बना सकते थे, ताकि वो आइडिया जो है वो, एक जहन में बात आपकी आई है ना कि इट हैज़ मैनी फॉर्म्स, तो आपको थोड़ा सा मज़ीद सोचना था कि मैनी फॉर्म से मुराद क्या है। ठीक है, उसको आपने यहाँ पे इसके साथ लिख लेना था, ताकि वो आपका एक सब्सटेंशिएट चीज़ बन जाए। सो इट्स गुड। इसको मज़ीद भी इम्प्रूव किया जा सकता है। वेरी गुड। अच्छा जी, अब जी, और कितने लोग लिख चुके हैं जी? जी, टाइम इज़ अप, टाइम इज़ अप। बस अब आप लिखना स्टॉप कर दें। जी, बाकी कोई शेयर करेगा अपना पिक्चर? शेयर करेंगे आप? वकील, आप शेयर करें पिक्चर। सर मेरे फर्स्ट तो मुस्तफ़ा का मोबाइल का कैमरा इतना अच्छा नहीं, दूसरा स्पेस नहीं है, तो मैं 2 मिनट दे दें, मैं दूसरे मोबाइल में पिक्चर लेके आपको सेंड करता हूँ। आप ऐसे ही बता दीजिएगा। ये मुस्तफ़ा कमाल ने लर्निंग में लर्निंग टू राइटिंग स्टोरी, ठीक है। अब आप इसके नीचे भी मुस्तफ़ा आइडियाज़ मज़ीद लिख सकते थे। लर्निंग टू क्रिकेट प्ले एज एन ओपनिंग बैट्समैन, ठीक है। इसके नीचे आप लिख सकते थे, आपने अगर देखी हो MS धोनी जो फिल्म बनाई है, तो वो भी आप देखें, एक फ़िक्शन फिल्म है ना, एक हिस्टोरिकल फ़िक्शन है, एक इंस्पिरेशनल फिल्म है। तो उसकी भी पहले किसी ने स्टोरी ही लिखी, और उन्होंने उस स्टोरी को कैसे क्रिएट किया कि क्रिकेटर है, वो क्रिकेटर बनना नहीं चाहता, पहले वो फुटबॉल पसंद है उसको, फिर उसे किस तरह से चांस दिया जाता है, जब उसे चांस दिया जाता है तो वो परफॉर्म करता है, फिर उसका शौक जो है वो उसमें पैदा होता है, और फिर वो आगे बढ़ता जाता है, स्ट्रगल करता जाता है, और किस किस तरह से वो
उसको बार बार जो है वो बैक किया जाता है, फिर वो फ्रंट पे आ जाता है और उसको मौका मिलता जाता है। इस तरह की आप पूरी एक यानी एक स्टेप आप जैसे लर्निंग टू क्रिकेट प्ले एज अ ओपनिंग बैट्समैन, ये जुमला इस तरह से होना चाहिए, लर्निंग टू प्ले क्रिकेट एज एन ओपनिंग बैट्समैन। तो फिर आप उस पर लिख सकते थे कि अब ओपनिंग बैट्समैन हाउ विल यू लर्न, you need to practice with playing with a new ball, ठीक है, न्यू बॉल पे खेलना, आप have a strong technique। तो आप उसमें अगर कहानी लिख रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपनी बात कर रहे हैं तो मुस्तफ़ा wanted to he joined a club, या ये काइंडली आपके पीछे जो है वो ये जो जवान म्यूट है इसको म्यूट करें ताकि बात हो सके। तो ये आप इस तरह से मुस्तफ़ा के ऊपर अगर लिख रहे हैं, कैरेक्टर आपने मुस्तफ़ा ले लिया है तो आप उसके फिर नीचे पॉइंट्स बना सकते हैं, ठीक है। ही जॉइंड अ क्लब, फिर ही प्रैक्टिस्ड प्लेइंग द न्यू बॉल, ही हैड अ कोच who was good with teaching opening batsman, he worked on his technique etc। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इस तरह से उसको वर्कआउट करते हैं। उसके बाद चौधरी मोहम्मद अकील अफसर ने जो है वो अपना अपलोड किया इमेज, इन्होंने भी बड़ा साफ़ सुथरा और बड़ा अच्छा काम किया है लर्निंग इंग्लिश, और इन्होंने नीचे लिखा डोंट स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, ये सारा कुछ इन्होंने इसमें ऐड किया हुआ है। तो इट्स गुड, इट्स वेरी गुड, आपने इसको अच्छा लिखा है।